معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکہ میں یومیہ کیسز 1 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں، ماہرین کا انتباہ۔ شام میں شہریوں کو غیر معمولی بھوک کا سامنا، 93 لاکھ افراد خوراک سے محروم، اقوام متحدہ۔ ڈھاکہ میں کشتی ڈوبنے سے کم از کم 32 افراد ہلاک۔ کویت میں 1 اگست سے پروازوں کی بحالی۔ پیٹرول 91 اور 95 کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے نائجیریا کے صدر محمد بخاری سے بہار میں شادی کی تقریب کے بعد 111 مہمان کووڈ-19 سے متاثر، دلہے کی موت۔ دہلی تشدد میں ڈاکٹر انور نے بچائی سینکڑوں کی جان، چارج شیٹ میں آیا ان کا بھی نام تو پوچھا میں ہی کیوں۔ سوپور میں جنگجوؤں کی فائرنگ، 1 CRPF اہلکار اور 1 عام شہری ہلاک۔ وزیر اعظم مودی نے کورونا سے جنگ میں مصروف ڈاکٹروں کو کیا سلام۔ وزیر اعظم کے خطاب پر راہل گاندھی کا رد عمل، کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ڈاکٹروں کی خدمات کے اعتراف میں ممتا بنرجی نے 1 جولائی کو ریاست میں سرکاری چھٹی کا کیا اعلان۔ KCR کی اندھی تائید، مسلمانوں کے مفادات نظر انداز۔ نرسمہا راؤ بابری مسجد مقامی جماعت، صدی تقاریب پر خاموشی سے عوام ناراض۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی نے آج ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر ریاست کے ڈاکٹروں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے آج کے دن کو ایک تاریخی دن قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی نے آج گنٹور میں 1088 جدید 104 اور 108 ایمبولینس کا افتتاح کیا۔ ضلع کڑپا میں 66 کورونا وائرس کے نئے مریض مثبت پائے گئے، تعداد بڑھ کر 1163 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ امریکہ میں یومیہ کیسز 1 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں، ماہرین کا انتباہ۔ امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے کہا ہے کہ اگر عوام نے صحت عامہ کی سفارشات پر عمل نہ کیا تو کورونا وائرس کے کیسز 1 لاکھ یومیہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات منگل کو امریکہ میں اسکول اور دفاتر کھولنے سے متعلق سینیٹ کی ایک کمیٹی کی سماعت کے دوران کہی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر فاؤچی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں وبائی امراض کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ شام میں شہریوں کو غیر معمولی بھوک کا سامنا، 93 لاکھ افراد خوراک سے محروم، اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے عالمی فوڈ پروگرام WFP نے خبردار کیا ہے کہ شام میں شہریوں کو غیر معمولی بھوک کا سامنا ہے اور 93 لاکھ افراد مناسب خوراک سے محروم ہیں۔ ڈھاکہ میں کشتی ڈوبنے سے کم از کم 32 افراد ہلاک۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب کشتی ڈوبنے سے کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ حادثہ پیر اور منگل کی درمیانی رات بوڑھی گنگا دریا میں صدر گھاٹ بندر کے قریب پیش آیا جب پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ کشتی میں تقریباً 50 مسافر سوار تھے۔ امدادی کارکن غوطہ خوروں کی مدد سے لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ جاپان میں نیا اسمارٹ ماسک تیار جو 8 زبانوں میں ترجمہ بھی کرتا ہے۔ کویت میں 1 اگست سے پروازوں کی بحالی۔ کویت کے محکمہ شہری ہوابازی نے کمرشیل پروازوں کی بحالی کے جامع پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ 1 اگست 2020 سے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کمرشیل پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول دیا جائے گا جبکہ مکمل فضائی آپریشن اگست 2021 سے قبل ممکن نہیں ہوگا۔ پیٹرول 91 اور 95 کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں 1 جولائی سے 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے بعد سعودی
आरामको ने पेट्रोल के नए नर्क जारी किए हैं। सबक वेबसाइट ने सऊदी आरामको के हवाले से बताया है कि पेट्रोल 91 के नर्क 90 हलाला से बढ़कर 98 हलाला फी लीटर हो गए हैं। पेट्रोल 95 की नई कीमत अब 1 रियाल 18 हलाला होगी। इससे पहले इसकी कीमत 1 रियाल 8 हलाला लीटर थी। तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए वली अहद का नाइजीरिया के सदर से राबता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी से टेलीफोन पर राब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब दोनों रहनुमाओं में होने वाली बातचीत में ओपेक प्लस के वर्क प्लान, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादुल ख्याल किया गया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नाइजीरिया सदर बुखारी के दरमियान होने वाली बातचीत में दोनों मुल्कों की तरक्की और खुशहाली पर भी गुफ्तगू की गई है। बिहार में शादी की तकरीब के बाद 111 मेहमान कोविड-19 से मुतासिर, दूल्हे की मौत। रियासत भर में एक शादी कोविड-19 वायरस फैलाने का जरिया बन गई। इस शादी में दूल्हा कोविड-19 के सबब हलाक हो गया और 100 से जायद मेहमान कोविड-19 में मुस्बत पाए गए हैं। 15 जून की शादी के एक दिन बाद ही दूल्हे के नमूनों की जांच नहीं हो सकी। रियासत के दारुल हुकूमत पटना में पीलीगंज के एक शख्स की शादी में 350 से ज्यादा मेहमान शरीक हुए। दूल्हा, जो गढ़गांव में मुकीम एक इंजीनियर है, अपनी शादी के लिए गांव आया था। ये शख्स बीमार था और शादी के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई। इसको इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल दाखिल कराया गया। उसको पेचिस की शिकायत थी। इसके साथ ही कोविड-19 के अलामात भी जाहिर हुए, लेकिन उसके अहले खाना ने उसको दवाएं लेने और रसूमात के साथ आगे बढ़ने पर मजबूर किया। दिल्ली तशद्दुद में डॉक्टर अनवर ने बचाई सैकड़ों की जान। चार्जशीट में आया उनका भी नाम तो पूछा मैं ही क्यों। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अनवर ने बताया, मैं इस वक्त सिर्फ उन लोगों को सेहत खिदमात मुहैया करा रहा था जिन्हें उसकी जरूरत थी। मैंने मरीज से ये तक भी नहीं पूछा कि वो हिंदू है या मुसलमान। दिल्ली पुलिस ने इस साल राजधानी में हुए तशद्दुद के सिलसिले में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में एक डॉक्टर का नाम भी है। ये जानकर वो चौंक गए। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अनवर। चार्जशीट में नाम आने पर उनका कहना है, ये बख्ताना है। मैं ही क्यों? मैंने तो दिल्ली तशद्दुद के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। सोपुर में जंगजुओं की फायरिंग, एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी हलाक। शुमाली कश्मीर में जिला बारामूला के मॉडल टाउन सोपुर में बुध की सुबह जंगजुओं की तरफ से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर किए गए हमले में एक एहलकार हलाक जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। जाए वारदात पर एक आम शहरी की भी लाश मिली है। सरकारी जराये ने बताया कि जंगजुओं ने बुध की सुबह मॉडल टाउन सोपुर में सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 सीआरपीएफ एहलकारों समेत 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। वजीर आजम मोदी ने कोरोना से जंग में मसरूफ डॉक्टरों को किया सलाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टरों को सलाम करते हुए कहा कि मुल्क के डॉक्टर्स कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सफ़े अव्वल में खड़े हैं। वजीर आजम मोदी ने आज डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर अपने ट्विटर पर कोरोना वायरस डॉक्टरों को सलाम करते हुए एक वीडियो भी मुश्तरक किया। उन्होंने कहा, मुल्क कोरोना वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के महाज पर डटे हमारे डॉक्टरों को सलाम करता है। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए।
वजीर आजम के खिताब पर राहुल गांधी का रद्द अमल, कहा तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौम से 17 मिनट के खिताब पर अपोजिशन कांग्रेस ने जोरदार हमला किया और उसको इधर उधर की फजूल बात करार दिया। चीन के दरअंदाजी पर पीएम की खामोशी पर सवाल भी उठाया है। कांग्रेस ने तनकीद करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की स्कीम में नवंबर तक की तोसी को महज एक इंतजामी उमूर का ऐलान करार देते हुए ये सवाल किया है कि आखिर बेरोजगारी पर वजीर आजम क्यों नहीं बोले, किसानों और मजदूरों की बदहाली पर क्यों नहीं बोले। छठ पूजा का जिक्र किए जाने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीएम के खिताब के बाद सबसे पहले कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। डॉक्टरों की खिदमत के एतराफ में ममता बनर्जी ने 1 जुलाई को रियासत में सरकारी छुट्टी का किया ऐलान। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने 1 जुलाई को डॉक्टरों के एहतराम में रियासत भर में तातील का ऐलान किया है। वजीर आला ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की खिदमत को अहम बताते हुए इस दिन को डॉक्टरों के एहतराम के तौर पर मनाने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने बंगाल के पहले वजीर आला बुधान चंद्र राय के यौम पैदाइश पर 1 जुलाई को रियासत भर में आम तातीलात का ऐलान करते हुए कहा कि ये दिन डॉक्टरों के नाम है। केसीआर की अंधी ताईद, मुसलमानों के मफादात नजरअंदाज। नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद मकामी जमात सदी तकारीब पर खामोशी से अवाम नाराज। साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की जयंती सदी तकारीब 1 साल तक मनाए जाने के मुतालिक तेलंगाना हुकूमत के फैसले ने अक़लियतों में नाराजगी पैदा कर दी है। केसीआर जो अक़लियत दोस्ती के दावे करते हुए नहीं ठगते, उन्होंने एक ऐसी शख्सियत की सदी तकारीब 1 साल तक मनाने का फैसला किया जिन्होंने अपने दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत की राह हमवार की थी। जब कभी इंतखाबात करीब आते हैं तो केसीआर अक़लियतों से हमदर्दी के बुलंद बांग दावे करते हैं। इतना ही नहीं, तेलंगाना तहरीक के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना की मुखालिफत करने वाली शहर की मकामी जमात तश्कील तेलंगाना के साथ ही सियासी कलाबाजी का मुजाहरा करते हुए टीआरएस की हलीफ बन गई। अब जबकि दोनों पार्टियां खुलकर एक दूसरे की तायीद कर रही हैं, लिहाजा अक़लियतों के मसाइल पसे पुश डाल दिए गए। 2008 में राजशेखर रेड्डी ने मकामी जमात की क़ियादत को नरसिम्हा राव के नाम की मुखालिफत से बाज रखा था। मुसलमानों से मुतालिक हर मामले में हुकूमत से नुमाइंदगी का दावा करने वाली मकामी जमात ने बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार शख्स की तकारीब के सिलसिले में वजीर आला से नुमाइंदगी की जहमत नहीं की। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुकूमत मसाजिद को बंद करने, बिलखुसूस जुमा के मौके पर मसाजिद में नमाज की इजाजत के बारे में पाबंदी का फैसला करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन मकामी जमात के सदर ने अपनी हवारी जमातों के साथ पहुंचकर मसाजिद को बंद करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने आज डॉक्टर्स डे के मौके पर रियासत के डॉक्टरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आज के दिन को एक तारीखी दिन करार दिया। రోజుల్లో ఈ రోజు ఒక రోజు ఖచ్చితంగా అవుతుంది। ఈ రోజు డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే ఉన్న మన డాక్టర్లందరికీ కాకుండా మన తెలుగు డాక్టర్లందరికీ కూడా ఈ రోజున శుభాకాంక్షలతోనే ఈ కార్యక్రమానికి మొదలు పెడతా ఉన్నాం। ఈ రోజు కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ ఇవాళ మొదలు పెడతా ఉన్నాం। ఇటువంటి కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ అన్నది గవర్నమెంట్ సెటప్ లో ఉండడం ఇది ఫస్ట్ టైం, మొట్టమొదటిసారి। ఇక్కడ మెడికల్, సర్జికల్ అండ్ రేడియోథెరపీకి సంబంధించి 3 విభాగాలు ఈ కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్లో అందుబాటులో ఉండడం, గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ఎండి రేడియోథెరపీకి సంబంధించిన 2 సీట్లు కూడా తీసుకొని రాగలిగాం। దిస్ ఇస్ ఆల్సో an achievable, this is also a great achievement అని చెప్పాలి। నాట్కో ఫార్మాసిటికల్ సంస్థ వెంకయ్య చౌదరి అన్న గారన్న ఆయన కృషి కూడా కొనియాడదగ్గ అంశం।
మరో 25 కోట్ల రూపాయల మేరకు హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా మనం తీసుకొని రావడం. హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్, సిటీ స్టిమ్యులేటర్, హెచ్డిఆర్ బ్రాకీ థెరపీ యూనిట్, గామా కెమెరా, ఇటువంటి హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ను తీసుకొని వచ్చి కాంప్రిహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ను స్థాపించడం జరిగింది. वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने आज गुंटूर में 1088 जदीद 104 और 108 एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने आज गुंटूर में 1088 जदीद 104 और 108 एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि साबिका वजीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी के ख्वाबों की ताबीर है ये 108 और 104 एम्बुलेंस गाड़ियां। आज का दिन रियासत की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। 188 एम्बुलेंस की नई गाड़ियां जब सड़कों से गुजर रही हैं तो एक अजीब सा समा देखा जा सकता है। आज जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर में GGH में एक कैंसर केयर सेंटर का इफ्तिताह किया और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत रियासत के हर एक शहरी की जान को अहमियत देती है। आज सारा मुल्क हमारे तरक्याती कामों का नजारा कर रहा है। 20 నిమిషాల్లోనే అంబులెన్స్ రావాలి, పేదవాళ్ళని పెద్ద హాస్పిటల్లో తీసుకొని పోవాలి, ఉచితంగా ఆపరేషన్ చేయించి చిరునవ్వుతో ఆ పేదవాడిని ఇంటికి పంపించాలి అని ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేదవాడి కోసం ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే జగన్ ఆ పేదవాడి కోసం 2 అడుగులు ముందుకు వేస్తాడని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా. जिला कड़पा में 66 कोरोना वायरस के नए मरीज मुस्बत पाए गए, तादाद बढ़कर 1163 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला कड़पा में 64 कोरोना वायरस के नए मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 1163 हो चुकी है, जो इस तरह है। प्रडुट्टूर में 26, चन्नूर में 4, कड़पा में 4, वल्लूर में 1, राजोपालयम में 1, दुबूर में 5, मुडुनूर में 1, तंडूर में 2, रामापुरम में 1, सिमहाद्रीपुरम में 9, पुलिवेंदला में 4, गालीवीड में 1, यर्रागुंटला में 1, चक्रायापेट में 1, काजीपेट में 1। 2 मरीजों का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से आने वालों से है। आज 24 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक जुमला 460 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 2029 अफराद को क्वारंटाइन में आइसोलेशन में रखा गया है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अवेकिंग न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।